Hello students. Now the next topic is the chemical reactions of amines. And there are four categories: basic reactions, reactions with E plus electrophiles, miscellaneous reactions, and electrophilic substitution reactions of aromatic amines. So here is number 1, basic reactions. Amines acts as Lewis base like NH3 due to lone pair on nitrogen atom. फॉर एग्जांपल, अगर अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है अमोनिया एंड फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. एंड लाइक अमोनिया, amines also gives OH negative ion by these reactions and accepts H positive from H2O and forms RNH3 positive, R2NH2 positive and R3NH positive and gives OH negative ion. So amines are basic in nature. And the basic character of amines can be detected by two chemical tests. The test with AlCl3 and FeCl3. They reacts with OH negative ion and forms white PPT of AlOH3 and brown PPT of FeOH3 with removing their Cl negative ions. So this is chemical test for all alkalis also. So by this test it is confirmed that amines are basic in nature. And these are some of the reactions of amines with acids also. They accept H positive ion of acids like H positive from HCl, H positive from HNO3 and H positive from RCOH and forms RNH3, R2NH2 and R3NH positive, and negative ion is Cl negative in HCl, NO3 in HNO3 and RCO negative in carboxylic acids. And these are salts: primary, secondary and tertiary ammonium salts called alkyl ammonium chloride, dialkyl ammonium nitrate and trialkyl ammonium carboxylate respectively. Next is number 2, the reaction with electrophiles, and this is also actually a basic reaction because E positive electrophiles are acidic. For example, reaction with metal ions like AgCl CuSO4 जिसमें है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और CuSO4 में है Cu2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव. They accepts lone pair from NH2 and forms coordination complex AgCH3NH2 twice Cl negative, CuC2H5 NH2 4 SO4 because copper accept करता है 4 lone pairs और silver 2 lone pairs and coordination complex are formed. And in the same category, the next is reaction with acid chlorides and anhydrides. एसिड क्लोराइड्स हैं RCOCl जिसमें है Cl नेगेटिव और RCO पॉजिटिव, और एनहाइड्राइड्स RCO2O मीन्स RCOO एंड COR जिसमें RCOO पार्ट है नेगेटिव और एसाइल ग्रुप RCO है पॉजिटिव. तो एसाइल ग्रुप के साथ ये कंबाइन करेंगे और अपना जो हाइड्रोजन है एक H प्लस रिलीज़ करेंगे जो यहाँ पर जाएगा Cl के पास और इसमें जाएगा RCO नेगेटिव के पास, एंड दे विल फॉर्म RNHCOR एंड RNHCOR अगर अमीन है प्राइमरी, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ बनेगा HCl और इसमें बाई प्रोडक्ट होगा RCOOH. सेकेंडरी अमीन्स यूज़ करते हैं तो H इसमें है प्रेजेंट तो Cl से मिलकर HCl बनाएगा और R2N के साथ जुड़ जाएगा COR, और ऐसे ही अनहाइड्राइड के साथ R2NCOR, और फॉर्मेशन हो रही है अमाइड्स की. ये हैं सेकेंडरी अमाइड्स, टर्सरी अमाइड्स, सेकेंडरी अमाइड्स एंड टर्सरी अमाइड्स. और इन रिएक्शंस में पिरिडीन यूज़ करेंगे. पिरिडीन होता है C5H5N जिसका ये स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये रिएक्शन करता है
प्रोडक्ट में HCl के साथ और RCOH के साथ, बिकॉज ये एसिड्स अमाइड्स को इजली हाइड्रोलाइज करके रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो pyridine इन एसिड से रिएक्शन करके रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। एंड नाउ यूजिंग दीज कंसेप्ट्स कंप्लीट दीज रिएक्शंस इन योर नोटबुक। pyridine स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद HCl, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स आर एरोमेटिक, तो रिएक्शन को बोलते हैं स्कॉटन-बोवेन रिएक्शन। मीन्स अगर हमारा अमीन एरोमेटिक है और एसाइल ग्रुप को देने वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन में एक वीक बेस NaOH से काम चल जाएगा एंड इट विल फॉर्म दिस एडिशन प्रोडक्ट एन फिनाइल बेंजामाइड, बिकॉज ये एक हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है। तो ये रिवर्स रिएक्शन नहीं करता, तो इसमें pyridine की ज़रूरत नहीं है, इसमें NaOH से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें स्किफ बेस की फॉर्मेशन होती है और इसको हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है विद रिमूवल ऑफ H2O। ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड नाउ अगेन कंप्लीट these 4 reactions using the above concept. Next is very important reaction with chloroform. इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। इसमें सिर्फ प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, जिसमें RNH2 में से H2 रिमूव हो जाते हैं और उसमें आ जाता है CHCl3 का कार्बन, और इससे फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनाइड या कार्बाइलमाइन RNC की, और बाई प्रोडक्ट में बनते हैं H2 और KCl। इसमें जो RNC की फॉर्मेशन होगी ये एक फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है, जिसकी काफ़ी ऑफेंसिव मीन्स बहुत ही परेशान करने वाली स्मेल होती है, और इसीलिए ये केमिकल टेस्ट का काम करता है। अगर प्राइमरी अमीन्स में क्लोरोफॉर्म KH मिलाने से फॉल स्मेल आती है RNC फॉर्मेशन से, तो प्राइमरी अमीन से अदर कंपाउंड्स में ये रिएक्शन नहीं होगी और फॉल स्मेल नहीं आएगी सेकेंडरी या टर्सरी में। सो कंप्लीट दीज रिएक्शंस एंड द आंसर विल बी NH2 के प्लेस पर आ जाएगा NC, यहाँ भी NH2 के प्लेस पर आ जाएगा NC, रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम R और AR। नेक्स्ट कम्स कैटेगरी थर्ड एंड दिस आर मिसलेनियस रिएक्शंस। मीन्स वो रिएक्शंस जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं विदाउट पैटर्न। फर्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, दैट इज़ HNO2। नाइट्रस एसिड में सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन, और प्राइमरी अमीन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक डिफरेंटली रेट करते हैं। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल चैप्टर में की थी। RNH2 HNO2 से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाएगा और N2 और H2 रिलीज़ करेगा। बट एरोमेटिक नहीं रिएक्शन करेंगे HNO2 से, उसके लिए हम HCl मिलाते हैं, तो रिएक्शन फिर काफ़ी एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर करेंगे और फॉर्मेशन होती है डाइजोनियम सॉल्ट की, इसे बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और H2 रिलीज़ होता है। इस डाइजोनियम सॉल्ट से फिर हम H2 मिलाकर फर्दर फिनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो फिनॉल चैप्टर में हमने ऑलरेडी कर लिया है। देन कम्स रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक सेम रिएक्शन करते हैं। ये है R2NH और ये है HNO2, जिसके 2 पार्ट हो जाएंगे OH और NO, जिसमें से OH कंबाइन करेगा H के साथ और ये बनाएगा H2O, और R2N के साथ कंबाइन करेगा N डबल बॉन्ड O पार्ट मीन्स दिस वन, और NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, तो इसका नाम है N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन, और इसका कलर होता है येलो। एरोमेटिक में भी सेम रिएक्शन होगी और येलो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी लिक्विड की, और ये एक सेकेंडरी अमीन्स का इसीलिए टेस्ट हो जाता है ड्यू टू येलो कलर, एंड दिस इज कॉल्ड लाइबरमैन टेस्ट ऑफ secondary amines. Then comes number 3, this is tertiary amines. tertiary amines में एलिफेटिक और एरोमेटिक डिफरेंट रिएक्शन करेंगे, लाइक
प्राइमरी। फॉर एग्जांपल R3NHNO2 एसिड बेसिक रिएक्शन होगी जिसमें H+ एक्सेप्ट होगा यहाँ से, एंड R3NH पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी। इसमें वाइट PPT बनते हैं। तो ये टर्सरी एलिफेटिक अमीन्स का केमिकल टेस्ट है। और एरोमेटिक अमीन्स सेकेंडरी की तरह रिएक्शन करेंगे बट स्लाइटली डिफरेंट वे में। HNO2 के 2 पार्ट होंगे, NO और OH। OH हाइड्रोजन रिलीज करेगा फ्रॉम पैरा पोजीशन और बनाएगा H2O, और उस पोजीशन पे खुद आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में NO, और इसका नाम है पैरा नाइट्रोसो NN डाइअल्काइल एनिलीन। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो ये भी एरोमेटिक टर्सरी अमीन्स का एक केमिकल टेस्ट है ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट मिसलेनियस रिएक्शन में। इसमें अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। ग्रिग्नॉड रिएजेंट है हमारा R-MgX। इसको प्राइमरी अमीन से अगर रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके R- के पास आ जाएगा और R-H एल्केन की फॉर्मेशन होगी। रिमेनिंग जो पार्ट हैं यहाँ से MgX और यहाँ से RNH वो कंबाइन करके बनाएंगे RNH-MgBr। सेम वे सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन है वो R- के पास जाएगा, R-H की फॉर्मेशन करेगा और MgX R2N से कंबाइन करके R2N-MgX की फॉर्मेशन करेगा। टर्सरी अमीन्स रिएक्शन नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास हाइड्रोजन नहीं है टू गिव टू R-। सो ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव रिएजेंट्स टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन। So using this concept, again you have to complete these reactions in your notebook. Take a screenshot by stopping the video. और मिसलेनियस रिएक्शंस में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स, और ये केमिकल टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें हम प्राइमरी अमीन RNH2, सेकेंडरी R2NH, टर्सरी R3N की रिएक्शन करेंगे एक स्पेशल केमिकल से जिसका नाम है बेंजीन। उसके ऊपर SO2Cl जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव है। ये अपने क्लोरीन को इसके H से कंबाइन करके HCl रिलीज़ करेगा और यहाँ पर NHR ग्रुप जुड़ जाएगा। इसमें NR2 ग्रुप जुड़ेगा बिकॉज यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और R3N में हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। यहाँ तक ये केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद ये केमिकल टेस्ट बन जाएगा। अगर हम सेकंड स्टेप में KOH ऐड करें तो KOH से रिएक्शन होगी यहाँ पे NH के हाइड्रोजन के साथ, H2 रिलीज़ होकर, और यहाँ पे K जो है वो N के साथ जुड़ा हुआ है। N पे नेगेटिव चार्ज है और इसीलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि KOH में ये प्रोडक्ट सोल्यूबल है। इसको बोलते हैं एनअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम यहाँ पे KOH डालते हैं सेकेंडरी टर्सरी में रिएक्शन के बाद तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ऑलरेडी नहीं था। सो बोथ विल बी इनसोल्यूबल। बट फर्दर अगर हम HCl ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि HCl R3N से रिएक्शन करेगा जिसने अब तक रिएक्शन नहीं की थी, और R3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक एसिड बेस रिएक्शन करेगा और इसलिए ये होगा सोल्यूबल इन HCl। बट यहाँ पे जो HCl है वो सेकेंडरी अमीन्स के इस प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज इसमें अभी भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर रहेगा इनसोल्यूबल। तो सेकेंडरी लास्ट स्टेप तक इनसोल्यूबल होगा, टर्सरी इनसोल्यूबल होगा सेकंड स्टेप तक, और प्राइमरी जो है वो फर्स्ट स्टेप के बाद ही सोल्यूबल हो जाएगा। और इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को 3 केमिकल यूज़ करके 1 2 3 इन स्टेप वाइज तो हम देख सकते हैं कि वाइदर इट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द फोर्थ कैटेगरी ऑफ अमीन्स एंड दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें होता है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, जो हम ऑलरेडी
प्रीवियस चैप्टर्स में कई बार पढ़ चुके हैं। बट NH2 एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये लेविस एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि ये बेस है तो हम हैलोजिनेशन में लेविस एसिड की बजाय H2 यूज़ करेंगे। बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग पावर इसमें दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 तो NO2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएगा, जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। बट इसमें एक और प्रोडक्ट है हमारा मेटा, जो लार्जर अमाउंट में बनता है 47%, ऑर्थो है ओनली 2%। तो कुछ पार्ट जो है पैरा का मेटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रीज़न हम अभी देखेंगे। मेटा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड हेयर एंड सल्फोनेशन में H2SO4 यूज़ करेंगे। 475 केल्विन पे पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाएगा और SO3H का हाइड्रोजन NH2 के पास जाएगा बिकॉज वो बेसिक है और ये एसिडिक ग्रुप है। एंड इट विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव और इस आयन को हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। जिस आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं उसको ज़्विटर आयन बोला जाता है, ZWITTER। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी का नॉर्मल बिहेवियर है इन सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। तो उसका रीज़न है NH2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है एट ऑर्थो एंड पैरा। तो सभी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हैलोजिनेशन में। नाइट्रेशन के दौरान हमने देखा कि उसमें फॉर्मेशन होती है मेटा प्रोडक्ट की बिकॉज एक एनिलीनियम आयन जो है और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। बिकॉज ये बेसिक हैं तो एसिड का H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं एनिलीनियम आयन। दिस वन इज़ एनिलीनियम और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज विड्रॉइंग ग्रुप एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज एट दिस पोजीशन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स मेटा पे रिएक्शन करते हैं और जबकि जिनमें एनिलीनियम आयन नहीं बनता तो वो मोस्टली पैरा पे अटैक होता है। तो मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लार्जर अमाउंट। इन केस ऑफ सल्फोनेशन हमने देखा कि स्पेशली सिर्फ पैरा की ही फॉर्मेशन होती है बिकॉज SO3H एक बल्की ग्रुप है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे नहीं आ पाता है और NH3 पॉजिटिव आयन भी जनरेट होते हैं जो उसको रोकते हैं। तो ओनली पैरा प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड एंड ऑर्थो इज़ नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडनेस। बट अगर इसमें हमें ओनली पैरा प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे जिसमें फॉर्मेशन होगी एसिटेनिलाइड की, मीन्स एनफिनाइल इथेनामाइड की। और इसको अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं CH3CH की प्रेजेंस में तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोएस्टेनिलाइड, जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। और नाइट्रेशन करेंगे तो इसमें भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे बिकॉज NH की रिएक्टिविटी को एसाइल ग्रुप जो COCH3 है ये रिड्यूस कर देगा बिकॉज ये है विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये NH2 की रिलीजिंग पावर को कम कर देगा खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। और यहाँ होगा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मेजर प्रोडक्ट। फर्दर इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। जो प्रोडक्ट हमें मिले थे ये दोनों पैरा ब्रोमो एस्टेनिलाइड में H2 मिलाएंगे एसिडिक कंडीशन में। तो NH का हो जाएगा NH2 और CH3CO का हो जाएगा CH3COH और इसे बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हमें मिला पैरा ब्रोमो एनिलीन। सेम वे पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा फ्रॉम पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस बिकॉज अमाइड्स का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक कंडीशन में बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ हो जाता है। फर्दर इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अमीन्स जो है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन मीन्स जो लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती हैं वो नहीं दिखाते। जैसे हैलोजिनेशन में भी हमने एसिटिक एसिड को यूज़ किया था क्योंकि अमीन्स जो हैं लेविस बेस हैं और वो लेविस एसिड से खुद रिएक्शन कर लेते हैं एंड फॉर्म्स सॉल्ट लाइक दिस। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर AlCl3 को डोनेट करेगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। सो दे डू नॉट शोज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो कि अदर कंपाउंड्स में पिछले चैप्टर में हमने देखा वो सभी दिखाते हैं लाइक हेलोरिन्स, फिनॉल्स एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एरोमेटिक कंडीशन में मोस्टली उनमें से दिखाते हैं इन रिएक्शंस को. So in this way we have completed the chemical reactions of amines, all the 4 categories, and in next lecture we will study about some important questions related to the basic character of the amines. Thank you.